Greetings, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work honestly and sincerely. My dear students, today we will start our exercise 8.1. After doing the basic theorems, there are 8 basic theorems, and today we will start our exercise 8.1. And the statement of the first sum is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. We have to find all angles of a quadrilateral. And my dear students, you already know that in a quadrilateral there are 4 angles and the ratio of the angles are given, and we have to find the exact measurement of angle. Okay, and you all know that the angles are property of a quadrilateral, that all sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Clear? Let my dear students, the angles of the quadrilateral are in the ratio this. आप लिखोगे ना angles of the firstly whatever it is given we have to write in the solution portion ना angles of quadrilateral, angles of quadrilateral are are 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. It is given that the angle of quadrilateral are in the ratio this. Okay, and if all the angles here, all the numbers are in the ratio and we have to find it exact measurement, firstly we have to let the common portion, let the common portion be x. तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 3x. तो आप लिखोगे let all angles are ठीक है is equal to ये all angles are 3x. if common ratio x है तो पहला एंगल क्या हो जाएगा 3x and second 5x and the third 9x and the fourth 13x. Clear? Now we will use, if we have all 4 angles and we know that the sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 degree, we use this concept. Okay, तो आप लिखोगे by using angle sum property of quadrilateral, or you can write here 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to, if I write here 360 degree, from where it came, ये कहाँ से आया, angle sum property of a quadrilateral. So in the reason also you can write angle sum property of a quadrilateral. In reason you can write angle sum property of quadrilateral. ठीक है, angle sum property of quadrilateral, the sum of all 4 angles equal to 360 degree. Now we can find the value of x. अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. Addition of all this is 30x equal to 360 degree. Okay, then x equal to 360 degree divide by 30. This is 12 degree. तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 degree. If we know the value of x, we can find the first, second, third and fourth angle ना. तो आप लिखोगे all angles are क्या होंगे, पहला एंगल क्या था हमारा 3x, तो this is 3 cross 12 36 degree. In this way we can find all the angles. Second angle क्या है 5x, 3 cross 12, sorry 5 cross 12 60 degree. This is the second angle na? And the third angle 9x 9 cross 12 equal to 12 nines are 108, so 108 degree. Okay, and the fourth angle क्या होगा 13x. तो आप लिखोगे 13 cross 12, 13 को 12 से मल्टीपल करोगे 156 degree. Okay, in this way the first angle 36 degree, second 60 degree, then 108 degree, and the fourth angle is 156 degree. We have to find the measurement of the all angles, and the all angles are here. Clear? तो आप लिख सकते हो लास्ट में आंसर्स 36 degree and then 60 degree, then 108 degree, and then 156 degree. This is the answer of the first one. Clear?
Now, my dear students, we will do our second sum of exercise 8.1, and the statement of the second sum is, if the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Are equal. If the diagonal of a parallelogram are equal, then we have to show that it is a rectangle. My dear student, this is a theorem. So if it is a theorem, we have to write the given to prove and proof part. Okay. If it is not a theorem, we have to write proofs. We have to find out something. Then in answer you have to write the solution part. Clear? So firstly we have to write what is given. आप लिखोगे given. Given क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं. If the diagonal of a parallelogram are equal, it means हमें एक parallelogram given है और उसके क्या इक्वल है? डायगोनल्स इक्वल है. ठीक है ना? तो आप लिखोगे ABCD is a parallelogram and diagonals are equal. यही इंफॉर्मेशन गिवन है तो गिवन में ये लिख दो ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. ठीक है? एंड क्या गिवन है? डायगोनल्स आर इक्वल. आप कंप्लीट लिख सकते हो. ABCD is a parallelogram and AC equal to BD. Because AC क्या है? Diagonal है और BD क्या है? This is also a diagonal. So ABCD is a parallelogram and AC equal to BD. These two informations are given. And what we have to prove? We have to show that it is a rectangle. ठीक है ना? तो आप given के बाद to prove portion में क्या लिखोगे? To prove ABCD is a rectangle. Is a rectangle. ठीक है, यही प्रूव करना है. नाउ आवर मेन पार्ट इज आवर प्रूफ. माय डियर स्टूडेंट्स, इन द बेसिक पार्ट we discussed the properties of the quadrilaters. ओके हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज, और उन क्वाड्रिलेटर्स के टाइप में हमने रेक्टेंगल को भी डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम को भी डिस्कस किया था. फर्स्टली वी विल रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टी कि हम इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है. और एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि पैरेललोग्राम के क्या होंगे? डायगोनल्स इक्वल होंगे. सबसे पहले आप चेक करो कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या किस चीज की नेसेसिटी है, कौन सी और प्रॉपर्टी लाई जाए कि पैरेललोग्राम क्या बन जाए? रेक्टेंगल बन जाए. इन पैरेललोग्राम जो गिवन है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है ना? एंड रेक्टेंगल आल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस कंडीशन इज कॉमन. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? वी डोंट नो द एंगल्स, बट इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है ना? इट मींस हमें प्रूव करना है अगर पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं 90 डिग्री के हैं तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. क्लियर? और रेक्टेंगल में क्या होता है? डायगोनल इक्वल. ठीक है ना? और अब डायगोनल इक्वल तो पैरेललोग्राम में नहीं होता, बट इन पैरेललोग्राम इट इज गिवन दैट ए डायगोनल इज इक्वल. अब हमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, अगर पैरेललोग्राम में, तो रेक्टेंगल की कंडीशन में ये है कि रेक्टेंगल में क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? फिगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो अब आपको शो करना है कि ये रेक्टेंगल ही है एबीसीडी. ठीक है, तो चेक करते हैं और लास्ट में बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रूव किया. क्लियर? स्टार्टिंग में बताऊंगी, देन यू विल बी कंफ्यूज कि मैम ये क्या बता रहे हैं. तो फर्स्टली वी विल चेक कि मैं कैसे प्रूव कर रही हूँ. यू हैव टू सी ABCD is a parallelogram given. तो आपने given में क्या लिखा है? ABCD is a parallelogram and diagonals are equal. तो मैंने AC और BG को इक्वल कर दिया. ठीक है? एंड हमें क्या प्रूव करना है? ABCD is a rectangle. क्लियर? अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री. बाकी सभी प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर रही हैं, बट एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए. तो अब मुझे शो करना है कि ABCD चारों एंगल कितने के? 90 डिग्री के. क्लियर? अब मैं ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं दो ट्रायंगल ले रही हूं. कैसे लिया मैंने? ट्रायंगल ABD. मैंने क्या लिया? ABD और ABC. I check these two triangles AB and D and ABC. These two triangles है ना? ABC. तो इन दो ट्रायंगल को मैं चेक करती हूँ. आप लोग इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, मैंने दो ट्रायंगल ली.
अब मैं दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव करूंगी एंड एट द लास्ट पॉइंट आई विल टेल यू कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूव की। मैंने लिया ए बी डी और ए बी सी। अब देखो एक इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए बी पार्ट कॉमन है, ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है, ठीक है ना। तो मैं ए बी को लिख दूं कि ए बी डी में भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो आप लिख दो ए बी इक्वल टू ए बी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए थ्री कंडीशंस होती है ना, तो दोनों ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, ठीक है। इट मींस दोनों क्या है, वो दोनों साइड्स क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप लिखोगे इक्वल साइड, इक्वल कॉमन साइड, सॉरी कॉमन साइड, ठीक है। एंड दिस इज द पैरेललोग्राम क्योंकि इट इज गिवन, सो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, तो अपोजिट इक्वल है ना। तो ए बी डी ट्रायंगल में ए बी साइड और ए बी सी ट्रायंगल में बी सी साइड इक्वल है। दैट मींस दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तभी तो इस एक ट्रायंगल की एक साइड अगर दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड की इक्वल है, दैट मींस दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कंडीशंस तो हमें लेनी है, तो मैंने क्या लिया, ए डी इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड क्या इक्वल गिवन है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी डी ट्रायंगल में बी डी, ठीक है ना, बी डी एक साइड है और ए बी सी ट्रायंगल में ए सी एक साइड है और ये डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के और डायगोनल्स इक्वल गिवन है और ये दोनों डायगोनल दोनों ट्रायंगल की थर्ड साइड है और ये इक्वल हो जाएंगी क्योंकि डायगोनल इक्वल गिवन है। तो ए बी सी में बी डी, सॉरी ए बी डी में और ए बी सी में ए सी, ये इक्वल हो गए। अब चेक करो कि दोनों ट्रायंगल आपके पास हैं, दोनों ट्रायंगल की थर्ड साइड दूसरे ट्रायंगल की थर्ड साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो गया क्योंकि तीनों साइड्स, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है और डायगोनल हमें इक्वल गिवन है, तो तीनों साइड्स इक्वल है एक दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के। दैट मींस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहां तक समझ आया? इफ देयर इज एनी डाउट टिल हियर देन यू कैन कमेंट मी। क्लियर? दिस इज वेरी इजी। हमें इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, यू हैव टू लुक हियर कि मैंने ऐसा क्यों स्टेप लिया कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं देन वी कैन राइट दैट द ऑल थ्री एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल is equal or are equal to all three angles of the second triangle, but the angles should be corresponding। तो कि एक ट्रायंगल के एंगल्स दूसरी ट्रायंगल की उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे बिकॉज द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकती हूँ ए बी डी ट्रायंगल में ये ए एंगल, ठीक है ना, एंड ए बी सी ट्रायंगल में ये बी। मैंने यहाँ 1 का नेम दिया, यहाँ 2 का नेम दिया, ठीक है। दिस इज अवर बी। देखो ना ए बी सी पे तो ए पूरा ही आ रहा है ना, मैंने इस पूरे कंप्लीट को 1 का नेम दिया और ए बी सी में 2 कंप्लीट पूरा आ रहा है तो मैंने इसे 2 का नेम दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि 1 एंगल 2 एंगल की इक्वल होगा, क्यों, बाय सीपीसीटी। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, द क्वेश्चन विल अराइज दैट कि मैम आपने ए और बी को ही क्यों इक्वल रखा। देखो ध्यान से देखना है यहाँ कि मैंने ए और बी को क्यों इक्वल रखा। ए बी सी ए बी डी ट्रायंगल है, देखो डी एंगल भी कंप्लीट नहीं बन रहा और यहां से बी एंगल भी कंप्लीट नहीं है, तो ए बी डी में ए एंगल पूरा लिया हुआ, क्लियर। एंड ए बी सी में देखो ए भी कम है सी भी कम है, सिर्फ बी एंगल कंप्लीट है, तो दोनों एंगल में जो कंप्लीट होंगे वही तो आपस में इक्वल होंगे। क्या कंप्लीट किसी एंगल हाफ के इक्वल हो सकता है? नहीं ना। तो इट मींस ए बी डी ट्रायंगल का A1 एंगल और ए बी सी ट्रायंगल का 2 एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया। दैट मींस दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 1 इक्वल टू 2 बाय सीपीसीटी। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब मैंने प्रूव कर दिया कि 1 और 2 एंगल सेम है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम गिवन है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। आपको पता है ना कि अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट क्या होता है, जो साथ साथ एंगल होते हैं जिसमें कुछ कॉमन
एक साइड होती है। अब ये कॉमन साइड है, इट मीन्स 1 और 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स है। एक और इसमें रीजन है, इट इज अ पैरेललोग्राम, सो AD और BC क्या होगा, पैरेलल है। अगर इफ दीज आर पैरेलल और AB क्या एक ट्रांसवर्सल जा रही है, अगर टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ने कच किया तो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस इज आल्सो अ रीजन। और सेकंड रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। दो रीजन है, एज यू विश, आप कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप लिखना यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, आप रीजन में लिखना सिर्फ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स। और यू कैन राइट हियर adjacent angles are supplementary, or you can write here the angles on the same side of the transversal. 3 रीजन है, तीनों सेम है, एज यू विश कि आप कुछ भी रीजन लिखो। आप लिखो को इंटीरियर एंगल्स और द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तीनों की सेम बात है, तीनों ही बातों से क्या आ गया, 1 और 2 क्या आ गया, 180, ठीक है ना। अगर 1 और 2 का एडिशन 180 है, इसे स्टार का नेम दो, तो फ्रॉम स्टार 1 और 2 क्या है, इक्वल है। अब स्टार की इक्वेशन को आप पुट कर दोगे इसमें, तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्टार, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्टार, ठीक है। मैंने स्टार से वैल्यू पुट की, तो 1 2 सेम है और 1 प्लस 2 180 है, तो आप लिख दो 1 प्लस 1 इक्वल टू 180, ठीक है ना। मैंने स्टार की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 1 प्लस 1 180 है, तो 2 बार 1 है, तो 2 ऑफ 1 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 डिग्री, सॉरी 180 बाई 2 90 डिग्री। इफ द वैल्यू मेजरमेंट ऑफ एंगल 190 और 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो 2 भी क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इफ 190 290, तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 और ये C एंगल भी तो वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये भी सप्लीमेंट्री होगी, तो ये C भी 90 और रेस्ट ऑफ क्या रह गया D, तो D भी 90 का, क्यों, क्योंकि चारों का एडिशन होता है 360 डिग्री। आपके पास 3 एंगल है तो आप 4 तो निकाल ही सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, in a quadrilateral, if one angle is 90, then you can also say that this is a rectangle. अब हमें तो दो एंगल 90 के प्रूव कर दिए, अगर दोनों 90 के, सिमिलरली वी कैन से दैट ऑल 4 एंगल्स आर 90। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल गिवन है और हमने दिखा दे डायगोनल इक्वल से क्या है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के एंगल किस में होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सो आप लिखोगे, सो इन दिस वे वी कैन राइट दे आर देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। आप रीजन भी दे सकते हो, आप लिखोगे इफ एनी एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल। अब आपने 90 के दो एंगल प्रूव कर दिए ना, तो आप लिख दो यहां इफ एनी एंगल of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. Then it is a rectangle. So hence ABCD is a, आप जरूर लिखना, hence ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. ठीक है, this is the answer. This is very easy theorem, not a typical, but you have to understand it very attentively. आपको ध्यान से समझना है. For this theorem, you know the properties of parallelogram and rectangle. आपको properties पता है. So after that you can find out the solution ना. Okay? If there is any doubt, then you can comment me. Thank you, my dear students.